کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس وسیع کائنات کا نظام آخر کس طرح چل رہا ہے؟ یہ آسمان، یہ ستارے، یہ بادل، یہ ہوائیں اور ہماری ہر سانس آخر کس کے حکم سے اپنے مقررہ راستے پر قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں ایک ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائے جو نور سے بنی، جو کبھی تھکتی نہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتی، اور ہر لمحہ صرف اپنے رب کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل میں مشغول رہتی ہے۔ یہ ہیں اللہ کے عظیم فرشتے، وہ فرشتے جو وحی لے کر انبیاء کے پاس آئے، جو بارش برساتے ہیں، جو روحیں قبض کرتے ہیں، اور جو قیامت کے دن سر پھونکنے کے منجر ہے۔ آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز داستان میں ہم ذکر کریں گے ان 4 عظیم فرشتوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے بڑے نظاموں کی ذمہ داری عطا فرمائے۔ حضرت جبرائیل وحی کے امین، حضرت میکائیل رزق اور بارش کے نگران، حضرت اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے والے، اور حضرت عزرائیل روح قبض کرنے والے فرشتے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نور ثاقب بوائے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے، اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف فرشتوں کی کہانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس عظیم نظام کی جھلک ہے جو ہر لمحہ ہماری نظروں کے سامنے جاری ہے، مگر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ تو آئیے ایمان کو تازہ کرنے والے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لمحے جب دنیا اپنی رفتار میں مصروف ہے، کائنات کے ان پوشیدہ گوشوں میں اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے عظیم فرشتے اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہیں۔ وہ نہ کبھی تھکتے ہیں، نہ اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں۔ دن رات اس کی حمد و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں اور ہر حکم کو کامل اطاعت کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے زمین اور آسمان کے نظام پر مقرر ہیں، کچھ انسانوں کی حفاظت پر، اور کچھ وہ ہیں جو عرش الہی کو اپنے شاندار وجود کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں۔ ہماری ہر سانس، دل کی ہر دھڑکن، ہوا کا ہر جھونکا اور آسمان پر چمکنے والا ہر ستارہ سب اللہ کے حکم سے انہی کے ذریعے اپنے مقررہ نظام میں چل رہا ہے۔ بادلوں کی گردش ہو یا پہاڑوں کی استقامت، ہر چیز اسی رب کے حکم کے تابع ہے جس کی اطاعت میں فرشتے ہر لمحہ جھکے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے حضرت جبرائیل کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہایت بلند مرتبہ اور بے پناہ طاقت عطا فرمائے۔ وہ ان عظیم فرشتوں میں شمار ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص احکامات پوری کائنات تک پہنچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ تمام فرشتے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور انہیں فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور ان کے سپرد انسانوں تک وحی پہنچانے اور دنیا کے نظام کو چلانے جیسے اہم امور کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام کا مطلب ہے اللہ کی قوت۔ قرآن پاک میں انہیں کئی القابات سے یاد کیا گیا ہے، جن میں روح القدس، روح امین، روح اور رسول شامل ہے۔ دوسری مذاہب، خاص طور پر یہودی اور عیسائی روایت میں انہیں گبریل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت جبرائیل ان فرشتوں میں شامل ہیں جو عرش الہی کے قریب موجود رہتے ہیں۔ وہ 4 بڑے فرشتوں کے قائد سمجھے جاتے ہیں، اور وحی پہنچانے کی سب سے اہم ذمہ داری ان کے سپرد ہے۔ ان کا مقام 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب بتایا جاتا ہے، جہاں بے شمار فرشتے ان کے حکم کے تابع رہتے ہیں۔ قدرتی طاقتیں جیسے زلزلے، طوفان، تیز ہوائیں اور قوموں پر آنے والے عذاب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ہونے والی جنگوں کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی قوم یا جماعت کی مدد کا فیصلہ فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو ان کی نصرت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ عام طور پر فرشتے جنگوں میں روحانی مدد اور حوصلہ بڑھانے کے لیے شریک ہوتے ہیں، لیکن غزوہ بدر ایک ایسا معرکہ تھا جہاں فرشتوں نے براہ راست میدان جنگ میں حصہ لیا۔
रिवायतों में जिक्र मिलता है कि वो सफ़ेद इमामे बांधे और हाथों में तलवे थामे हुए थे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तक ये पहचान लेते थे कि कौन दुश्मन मुसलमानों के हाथों मारा गया और कौन फरिश्तों के जरिए हलाक हुआ। उन दुश्मनों के जिस्मों पर जलने और सियाह निशानात जैसे आसार नुमाया दिखाई देते थे। उस मौके पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लिहाजा अहले ईमान को मजबूत रखो। मैं इनकार करने वालों के दिलों में खौफ पैदा कर दूंगा, बस उन पर भरपूर हमला करो। रिवायतों में आता है कि गजवा बदर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जंगी साजू सामान के साथ अपने घोड़े पर मौजूद और मुसलमानों की मदद के लिए आए हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उन अजीम फरिश्तों का कायद माना जाता है जो अल्लाह के हुक्म से मखलूकात के दिलों में रहनुमाई और इल्म डालते हैं। वो उन फरिश्तों तक भी अहकामात पहुंचाते हैं जो सितारों, आसमानों और कायनात के बेशुमार निजामों की निगरानी करते हैं। इसी के साथ वो अर्श इलाही के करीब हाजिर रहते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करते हुए उसके अहकामात हासिल करते हैं। वो दुनिया और आखिरत के दरमियान अल्लाह ताला के पैगामात पहुंचाने वाले सबसे मुइज़ फरिश्तों में शुमार होते हैं। अंबिया इकराम तक वही पहुंचाना, फरिश्तों को हिदायत देना और बराह रास्त अल्लाह ताला से अहकामात वसूल करना उनकी अजीम जिम्मेदारियों में शामिल है। उनकी जाहरी सूरत निहायत शानदार और नूरानी बयान की गई है। रिवायतों के मुताबिक उनका चेहरा रोशनी से जगमगाता है, बाल कीमती मृजान की मानिंद खूबसूरत दिखाई देते हैं, रंग इंतहाई साफ और रोशन है, जबकि दांत बर्फ की तरह सफ़ेद है। उनके कदम सुर्खी माइल घुटने जर्द चमक वाले और परों का रंग जाफरानी बताया जाता है। उन परों पर सितारों जैसी चमक रखने वाले जेवरात सजे हुए हैं। हजरत जिब्राइल के बारे में कहा जाता है कि उनके 600 अजीम पर हैं जो मोतियों और याकूतों से मुजैन है। हर दो परों के दरमियान इतना फासला है जितना 500 बरस की मसाफत। उनकी रफ्तार इस कदर तेज बयान की जाती है कि सूरज उनकी दोनों आंखों के दरमियान महसूस होता है। रिवायतों में जन्नत के एक नूरानी दरिया का भी जिक्र मिलता है जो अर्श इलाही के दाएं जानिब वाक़ है। कहा जाता है कि हजरत जिब्राइल वहां गुस्सल करते हैं और जब वो अपने पर झाड़ते हैं तो उनसे बेशुमार कतरे गिरते हैं, जिनमें से हर कतरे से हजारों फरिश्ते पैदा किए जाते हैं। तमाम अंबिया इकराम में सिर्फ रसूलुल्लाह वो हस्ती हैं जिन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लिखने, पढ़ने और खेती बाड़ी के तरीके सिखाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तैयारी में मदद की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन के जादूगरों के मुकाबले में नुसरत फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका ताल्लुक सबसे मुनफिद और करीबी था। पहली वही से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त तक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। गारे हिरा में पहली मुलाकात के दौरान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अजमत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैबत तारी हो गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थामा और दोबारा वही हुक्म दिया। हजरत जिब्रील की सबसे हैरानक सिफात में से एक ये बयान की जाती है कि हजरत जिब्रील की एक हैरतअंगेज खुसूसियत ये बयान की जाती है कि वह मुख्तलिफ अंदाज और शक्लों में जाहिर होने की कुदरत रखते थे। कभी वो अपनी असल नूरानी सूरत में आते, कभी इंसानी रूप इख्तियार करते और बाज औकात दूसरी शक्लों में भी नजर आते। ज्यादातर मौके पर वह निहायत खूबसूरत, बावकार और ताकतवर इंसान की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होते थे। एक रिवायत के मुताबिक एक दिन अचानक आवाज आए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं जानिब देखा, फिर बाएं तरफ आगे और पीछे भी निगाह दौड़ाई मगर कोई दिखाई ना दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा तो हैरान रह गए। पूरा ऊक एक अजीमो शान मंजर से भरा हुआ था। हजरत जिब्रील एक बुलंदो अजीम तख्त पर जलवा अफरोज थे और उनकी मौजूदगी ने पूरे आसमान को ढांप रखा था। फिर उन्होंने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्रील हूँ। मैं, गला साफ करने की आवाज़, जिब्रील हूँ। यह मंजर अपनी शान और हैबत के बास इतना अजीम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान चले गए ताकि दोबारा उस मंजर का सामना ना हो। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूम से अलग हुए तो वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा नज़र उठाई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर अपनी असल सूरत में पूरे ओक पर छाए हुए दिखाई दिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले नहीं थे, बल्कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वही की हिकमत, मफ़हूम और अमली तालीम भी सिखाते थे। हदीस में जिक्र मिलता है कि वो कभी खूबसूरत इंसान की शक्ल में हाजिर होते और कभी किसी सहाबी की सूरत इख्तियार करके वजू, नमाज, कुर्बानी और हज जैसे अहम इबादत के तरीके सिखाते थे। बाद सबा इकराम ने ये हैरतअंगेज वाक़यात अपनी आंखों से देखे। शबे मेराज के अज़म वाक़ये में भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुझे जगाया मगर मैं दोबारा सो गया। यह अमल 3 मरतबा हुआ। आखिरी मर्तबा मैं पूरी तरह बेदार हो गया तो हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ थामा और हम दोनों मस्जिद की तरफ रवाना हुए। फिर वो मुझे मस्जिद हराम ले गए। वहां उन्होंने मेरा सीना गले से नाफ तक खोला, उसे जमजम के पानी से पाक किया और फिर ईमान और हिकमत से भर दिया। उसके बाद एक सफ़ेद सवारी पेश की गई जो गधे से बड़ी मगर खच्चर से छोटी थी। उसे बर्राक कहा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं उस पर सवार होने लगा तो वो बेचैन होने लगा। हजरत जिब्राइल ने उसके चेहरे पर हाथ रखा और फरमाया, क्या तुम जानते नहीं कि आज तुम पर अल्लाह के सबसे मुअज्जज़ बंदे सवार होने वाले हैं। ये सुनकर बर्राक फौरन पुरसकून हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ उस पर सवार हुआ। उसकी रफ्तार हैरानक थी। उसका हर कदम वहां पड़ता जहां तक निगाह पहुंच सकती थी और एक ही जुस्त में वो इंतहाई दूर मकाम तक पहुंच जाता था। बादज़ा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान तक ले गए। वहां पहुंचकर दरवाजा खोलने की इजाजत तलब की गई। अंदर से सवाल हुआ, कौन है? जवाब आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फिर पूछा गया, आपके साथ कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सवाल किया गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब मिला, जी हाँ। तब आसमान के फरिश्तों ने खुशामदीद कहा, यह निहायत बाबरकत आमद है, और फिर आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। जब सफ़रे मेराज के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के मकाम तक पहुँचे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसके बाद आपको तन्हा आगे जाना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आप साथ क्यों नहीं आते? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ इसी हद तक आने की इजाज़त दी गई है। अगर मैं इस मकाम से एक कदम भी आगे बढ़ाऊं तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के वो हैरतअंगेज मनाजिर देखे जिनकी वुसअत जमीन आसमान से भी बढ़कर थी। वहां मोतियों, याकूतों और जमुरत से बने मोहल्लात जगमगा रहे थे।
जबकि जन्नत की मिट्टी से ऐसी खुशबू उठ रही थी जो दुनिया की किसी खुशबू से मुशाबे ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक अजीम दरिया भी देखा, जिसके किनारों पर खोखले मोतियों से बने खूबसूरत गुंबद मौजूद थे। उस दरिया के फर्श पर मोती, मुश्क और कीमती जवाहरात बिखरे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया, ए जिब्राइल अलसलाम, ये कौन सा दरिया है? हजरत जिब्राइल अलसलाम ने अर्ज किया, ये कौसर है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। इसका पानी शहद से ज्यादा शरी और दूध से ज्यादा सफेद है। कुरान करीम में इस अजीम सफ़र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद आ तक ले जाकर अपनी निशानियां दिखाएं, और बेशक वो हर चीज़ को सुनने और देखने वाला है। हजरत जिब्रील की गैर मामूली कुत के बारे में भी कई रिवायतें बयान की जाती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने हजरत लूत की कौम की पूरी बस्ती को जमीन से उठाया, उसे आसमान की बुलंदी तक ले गए और फिर उलटकर जमीन पर गिरा दिया। इसी तरह फिरौन के आखिरी लम्हों में भी हजरत जिब्रील मौजूद थे, और रिवायत के मुताबिक उन्होंने उसके मुंह में मिट्टी डाल दी ताकि वो आखिरी वक्त में झूठी तौबा न कर सके। हजरत जिब्रील अल्लाह ताला के निहायत मुकर्रब फरिश्तों में शुमार होते हैं। उनका मक़ाम अर्श इलाही के करीब बताया जाता है, और वो हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह और उसके अहकामात की तामील में मशगूल रहते हैं। अगरचे नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है और वही का नजूल खत्म हो गया, मगर हजरत जिब्रील आज भी अल्लाह ताला के खुसूसी अहकाम अंजाम देते हैं। अब जिक्र करते हैं एक और अजीम फरिश्ते हजरत इसराफील का। रिवायतों के मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया हैरानिक तब्दीलियों के दौर में दाखिल होगी। वक्त तेजी से गुजरने लगेगा, दिन मुख्तसर महसूस होंगे और इंसान कुदरत में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों को देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। यह वो जमाना होगा जब क़यामत की निशानियां एक के बाद दिगरे जाहिर होना शुरू होंगी। दज्जाल दुनिया में फितना फैलाएगा और लोगों को धोखे में डालने की कोशिश करेगा। हजरत ईसा दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे, जबकि इमाम मेहंदी लोगों को सच्चाई और हिदायत की तरफ बुलाएंगे।